I think I was instantly in love with Nivedita. मुझे इतने ज़्यादा जो opposite lives जीते हैं लोग कभी कभी, ऐसे मुझे characters बहुत interesting लगते हैं, क्योंकि I think that is where you see very complex human emotions. And मतलब मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप vulnerable भी होते हैं, हमेशा strong play नहीं कर सकते. तो strength भी है, weaknesses भी हैं, love भी है, pain भी है, and you carrying all of that burden, and you sort of living a life of a, say, political leader in this. So बहुत complex lives हैं, emotionally complex. I think that is what I enjoy more. Plot twists and turns, of course, they keep happening. But I think emotionally, when you carry that burden, I think that those are the kind of characters that I really like. तो मुझको, तो I think I fell in love with Nivedita when I heard her character. And uske baad, then I had great time dissecting it and slicing it and going thinner and thinner, So yeah, that I like. मुश्किल या आसान तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे बस बहुत ही मज़ेदार क्या कहते हैं सफ़र लगा है मुझे शागुर बनने का. और जैसे मैं मजाक में कहता हूँ, गाने से बजाने तक का सफ़र है. गायक का किरदार करके मुझे कुछ पहचान मिली थी. और इस वक्त मुझे लगता है जिस तरीके का किरदार मैंने खाकी द बंगाल चैप्टर में प्ले किया है, उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये भी पसंद आए. उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मेरा ये नया रंग ऋत्विक का लोगों को पसंद आए, जिस तरीके से बंगाल का नया रंग लोगों को पसंद आ रहा है. तो मज़ेदार सफ़र रहा है, और आपके साथ ये सफ़र तय करने में और भी मज़ा आया है. आपके साथ जो दोस्ती बनी है, जो दोनों किरदारों के बीच में भी है और हम दोनों कलाकारों के बीच में भी, हम दोनों इंसानों के बीच में भी है. और इस दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए हमने काफ़ी सारी मस्तियाँ भी की हैं सेट पे, और काफ़ी सारे एज अभिनेता भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो शायद बहुत ही कम अनुभवों में हमें मिल सकती है, या बहुत ही कम जगहों में हमें मिलती हैं. सो थैंक यू टू खाकी द बंगाल चैप्टर टू giving me a friend like this and a co-actor like this, and for honestly for giving me the privilege of sitting next to Chitrangada Singh. Oh God. Because Okay. मैं बहुत बड़ा fan रहा हूँ इनके काम का. Oh my God. Ma'am, if you don't mind, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? Okay. Oh, thank God. Let's go. बचा. निवेदिता का जो किरदार आप प्ले कर रहे हैं शो में, वो बहुत ही आइडियलिस्टिक है. और इनके बैक स्टोरी में भी दिखाया गया है, विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स, कि इनकी आइडियलिज्म वो एक और किरदार के साथ शेयर करते थे. और वो किरदार उस आइडियलिज्म को लंबे सफ़र तक नहीं ले जा पाए, जिस भी वजह से. और आपने दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों के आइडियलिज्म एक साथ अकेले तय किया वहाँ से. सो जैसे कि शागुर और रंजीत का दोनों का साथ में जो भी है, साथ में है. आपको अकेले दो लोगों की जर्नी तय करनी थी इस शो में. क्या आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आइडियोलॉजीज़ अकेले लेके आगे बढ़नी पड़ रही हैं? वो fortunately इतना ज़्यादा burdened life नहीं रही है. I mean, thank God for that. But yeah, because I mean, I'm a mother, so I think that's the one thing वो कहते हैं ना, you can stop being a wife, you can never stop being a mother. Absolutely. So I think that is, but that's not a burden. I think it's the most beautiful feeling that, but there's also responsibility. Correct. That comes with it. तो आपके जो भी career choices हैं, life choices हैं, there is always that at the back of your mind. But I think that just also makes you, how do you say, emotionally more, I think, enriches you somewhere, क्योंकि वो एक sense of sacrifice to living life a certain way वो आता है, and बहुत easily आता है. I won't even call it a sacrifice. I think it's just the fact that you can change and be this person for someone. Correct. Unconditionally. So I think it's a very beautiful thing that I've experienced, and that sort of, not a burden, but that responsibility, I think has helped me become a better actor. कहीं ना कहीं this whole experience has, it just, I don't know how to say, there's just sense of complete rootedness that it brings to you, you know. So वो आपके characters में भी आती है, वो sense of emotional maturity you can bring to, I think I somewhere will draw from that for Nivedita's character. Absolutely. So the sense of loss and things like that, you felt these feelings, कहीं ना कहीं. So yeah, I mean, I think I would say this for people, like whatever burdens, so-called burdens in your life, will, at least for actors, make us better actors. It always enriches you. And
शागुर प्ले करने के बाद इस किरदार की हाउ डू आई पुट इट, मुझे लगता है अब ज़िंदगी में कभी भी कोई भी किसी भी मोड़ में किसी भी वक्त अगर मुझे ऐसा लगा कि क्या मुझे अपना काम आता है कि नहीं, मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि मैंने खाकी द बंगाल चैप्टर में शागुर प्ले किया था, तो शायद मुझे अपना काम आता है। That's amazing. I think for me it is एक वो, so I think मैं inherently थोड़ी सी shy, slightly introverted हूँ. तो जब and I keep coming back to that scene जहाँ पे you know press conference करती है या बहुत सारे लोगों के सामने खड़े होकर speech देती है, मुझे इतना vocal और इतना ज़्यादा how do you say extroverted kind of character play करने के लिए बहुत effort लगता है. So when I saw, honestly, when I went on that stage और जब मैंने उस scene में 200 वहाँ पे देखे थे junior you know actors were there, मुझे बहुत घबराहट हुई. And the fact that होता है ना कि आप कहीं director को ढूंढते हो and वो director बहुत दूर एक tent में बैठ के ये सब you know he was on a monitor there and I couldn't even speak to him, I couldn't see him. तो वो मुझे थोड़ा सा वो लगा. But I think to be able to overcome that and you know just play the part, I think कहीं ना कहीं एक वो certain amount of confidence मुझे भी ऐसा लगता है कि that I've gained from this. So I think that's what I'm taking away from Khaki. Yeah. Wow. Yeah, and the part of this ensemble cast, and it's just seriously, I think when you see the series, I've not seen the whole thing yet, but you really learn so much, you know, from every performance. मतलब I feel, and it becomes personal when it's your own, you know. तब आप ज़्यादा सीखते हो, मुझे ऐसा लगता है. नहीं, don't you think? No, absolutely, absolutely. Because But, yeah, you know, since you're talking about learning, there's this one last thing that I want to ask both of you guys. जी. आप लोग की credibility already established हो चुकी है as actors. People respect you, people adore you, people love you guys. बहुत सारे लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, फ्रेशर्स हैं जो कि क्लूलेस हैं, दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच इट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. व्हाट डू यू ऑल हैव टू से टू ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ? you were first. सॉरी, इसका जवाब मैं अंग्रेज़ी में दे रहा हूँ. अगर आपको ना भी समझ में आए, आप किसी अपने दोस्त से प्लीज़ ट्रांसलेट करवा दीजिएगा, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट वे ऑफ आंसरिंग दिस फॉर मी इज़ इन इंग्लिश. कि वी आर अ जनरेशन ऑफ पीपल दैट लाइक एंड फॉलो, बट लेट्स नॉट फॉरगेट टू लव एंड लीड इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइकिंग एंड फॉलोइंग. तो अपने आप से, अपने क्राफ्ट से, अपने काम से प्यार कीजिए और ऐसी चीज़ें कीजिए जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि सिर्फ फॉलो करने में कुछ नहीं रखा है. तो लीड कीजिए, प्यार कीजिए, और तभी यहाँ पे आइए जब आपको पता चले कि इससे आपको बेहद प्यार है. क्या बात है, क्या बात है. करेक्ट है, बिल्कुल सही जो उन्होंने कहा, वही मैं कहना चाह रही थी. एंड ही सेड इट ब्यूटीफुली. सच में आई थिंक क्राफ्ट से प्यार होना चाहिए. आप यहाँ पे सही वजह से यहाँ पे आपको आना चाहिए. सिर्फ ग्लैम नहीं है ये, इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ट, लॉट ऑफ पैशन. अगर वो है तो आप यहाँ पे टिक पाएंगे, अदरवाइज लाइफ कैन बी टफ. इट मे लुक ग्लैमरस बट इज़ वेरी टफ. सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ. आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि वही यार कि अगर आप आ रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के आइए. आप वाकई में ये तोल मोल कर लीजिए कि वेदर यू रियली वांट इट और नो, क्योंकि इफ़ इट ऑल द रियल हंगर इज़ नॉट देयर देन इट वुड बी अ डिफ़िकल्ट जर्नी फॉर यू. लेकिन अगर आप वाकई में इस चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो यू विल एंजॉय एवरी बिट ऑफ द प्रोसेस. With that note, ladies and gentlemen, watch Khaki the Bengal chapter streaming on Netflix, and let us know what you feel about it. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.